નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. બિહારની ખૂબ ઓછી ચર્ચા થઈ રહી છે, પરંતુ બિહારની દેશભરમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. 2020 પછી વિધાનસભા ચૂંટણી અને આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શું તખ્તાપલટ થશે? નીતિશ કુમારની રાજનીતિ જે કેન્દ્રમાં જે રોલમાં રહ્યા, કેમ કે 2 વખત પલટી મારી અને નીતિશ કુમારના શાસનમાં 2005થી 2025 સુધી બિહાર ચાલ્યું, ક્યારેક આરજેડી સાથે, ક્યારેક બીજેપી સાથે. પણ આ વખતે સ્થિતિઓ તદ્દન વિપરીત છે. કોંગ્રેસ શું એટલી મજબૂત થઈને મહાગઠબંધન જે વિપક્ષનું છે તેને વધારે મદદરૂપ થશે? તમામે એક સુરે તેજસ્વીની આગેવાનીમાં ચૂંટણી લડવાની આખરી જે નિર્ણય કર્યો અને જે મેનિફેસ્ટો છે મહાગઠબંધનનો, તેમાં પણ તેજસ્વી પ્રાણ નામ અપાયું, ચહેરો નામ અપાયું. તો આ એ તમામ મતદારો છે. આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાર હતું. છપરા બેઠક ખેસારીના કારણે સૌથી વધારે ચર્ચામાં હતી. ખેસારીની એક પ્રોપર્ટી પર બુલડોઝર ચલાવવાની નોટિસથી માંડીને ઘણું બધું ચર્ચામાં રહ્યું. મોકામામાં જે મર્ડર થયું, દુલારચંદ યાદવ, આનંદસિંહ જેલમાં ગયા. આજે બીજેપીના એક નેતા પર પથ્થરમારો થયો, આક્ષેપ આરજેડી પર લાગ્યા. પણ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. બીજેપી એનડીએ સીધી જાહેરાત કરી મહિલાઓના ખાતામાં 10,000 નાખવાની. તેજસ્વી યાદવ ઘરે ઘરે નોકરી આપવાની વાત કરે છે. તેજસ્વી યાદવે એક દિવસ પહેલા કહ્યું કે મહિલાઓને મકર સંક્રાંતિ પર 30,000 સરકાર આપશે જો સરકાર બનશે. તો ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. વાયદાની બજાર ગરમ છે. દાવા કરવામાં ક્યાં કોઈનું જાય છે. પણ બિહાર માટે રોજગાર અને સરકારી નોકરી સૌથી મોટો મુદ્દો છે. અને આ મુદ્દા વચ્ચે આજે 60%થી વધુ મતદાન થયું. એ મતદાન ઘણું બધું સૂચવશે અને આંકડાઓ પણ થોડા ઘણા બધા બદલશે. તો આજે જે 121 બેઠક પર મતદાન થયું, 18 જિલ્લા છે અને આ જિલ્લાઓમાં 60-40 ની પરિસ્થિતિ છે. 2020ની જો પરિસ્થિતિએ નજર કરીએ, કેમ કે આ વખતે વીઆઈપી મુકેશ સાહની જોડાયા છે ગઠબંધનમાં વિપક્ષના અને ડેપ્યુટી સીએમના ચહેરા તરીકે પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છે તેજસ્વી યાદવ. અને સીપીઆઈ માલેથી લઈને કોંગ્રેસથી લઈને નાની પાર્ટીઓ સાથેનું ગઠબંધન. બીજી તરફ જે એનડીએ છે, એનડીએમાં 2020માં ભલે નીતિશ કુમાર સીએમ બન્યા, પરંતુ આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ નીતિશ કુમારની પાર્ટી નંબર્સમાં ઘટી. છતાં ભલે સીએમ બન્યા પણ નંબર્સમાં ઘટી. તો આ વખતે નીતિશ કુમારનો રોલ એ મુઝફ્ફરપુર હોય, સમસ્તીપુર હોય, આ તમામ જગ્યાએ ઓલમોસ્ટ બમ્પર મતદાન થતું હોય છે. સવારમાં એવા પણ સમાચાર મળ્યા કે કેમ કે ગંગાની આસપાસ ઘેરાયેલા જે પ્રદેશ છે, હોડી લઈને તમારે જવાનું હોય બીજા છેડે, અને ઘણા બધા બ્રિજ, આમ તો બ્રિજ તૂટવા માટે જાણીતું છે બિહાર. 24 કલાક નથી થયા એક ઘટના એ બની. તો નાવડીઓ બંધ હતી. એ પ્રશાસન પર આરોપ પણ લાગ્યો કે મતદાન કરવા ન જવા દેવાયા. તો બિહારમાં નવું નથી, પણ બિહારમાં આ વખતે શું ચિત્ર બદલાય છે અથવા તો જે કંઈ પણ અત્યાર સુધીના ચૂંટણી ભાષણોમાં જોયું, એનડીએનો એક જ નારો રહ્યો છે, જંગલ રાજ. એ જ મુદ્દા ઉપર ચૂંટણી લડાઈ રહી છે. બીજી તરફ રોજગારની વાત થઈ રહી છે અને તેજસ્વી જે ગઠબંધનનો ચહેરો છે, 2 વખત ડેપ્યુટી સીએમ રહી ચૂક્યા છે, કહી રહ્યા છે કે એક મોકો એટલીસ્ટ આપો. અને આ જ પરિસ્થિતિઓમાં કદાચ વડાપ્રધાન મોદીની દરેક સભામાં એક ડાયલોગ કોમન હતો કે વડીલો જે યુવાઓ છે એને કહેજો કે અગાઉનું જંગલ રાજ કેવું હતું. 2005 પહેલાની સ્થિતિ 2020માં પણ હતી, 2025માં પણ હતી. સીએસડીએસનો એક સર્વે છે અને સીએસડીએસનો સર્વે એ હતો કે બિહારમાં લોકો કયા મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને સૌથી વધારે મતદાન કરે છે. તેમાં અલગ અલગ મુદ્દાઓ હોય છે. 2005માં સીએસડીએસના સર્વે મુજબ જે રોજગારી મુદ્દો છે, 5% લોકો તેને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કરે છે એ હતો. પરંતુ 2020 આવતા એ આંકડો થઈ ગયો 15%. લેટેસ્ટ આંકડો ખબર નથી, પરંતુ જે પ્રકારની કોવિડ પછીની સ્થિતિ છે, જે અલગ અલગ ભરતીઓના કારણે, પેપર લીકના કારણે જે નારાજગી બિહારમાં હતી, તો યુવાઓને ટાર્ગેટ તેજસ્વી યાદવ કરી રહ્યા છે, કેમ કે સરકારી નોકરીનો સવાલ છે. અને બીજી તરફ રોજગારી એક મુદ્દો છે, કેમ કે પલાયન સૌથી મોટો મુદ્દો છે. નીતિન ગડકરી કહી રહ્યા છે, જે 2020માં કહી રહ્યા હતા, 22માં કહી રહ્યા હતા કે અમેરિકા જેવા રોડ બિહારમાં બનશે, પરંતુ પુલની સ્થિતિ અલગ છે. જે 2020માં જે પરિણામ છે, કેમ કે આરજેડી સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી હતી અને માત્ર 12,000 મતથી વિપક્ષનું ગઠબંધન સત્તામાં આવતા ચૂક્યું. ત્યારે પણ આક્ષેપ લાગ્યા કે જે નોમિનલ માર્જિન હતું તેમાં ઘણું બધું થઈ ગયું. ત્યારે પણ ઇલેક્શન કમિશન ઉપર વિપક્ષે આક્ષેપ લગાવ્યા હતા અને આ વખતે વોટ ચોરીનો મુદ્દો હતો. માત્ર 24 કલાક પહેલા રાહુલ ગાંધીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ છે ફરીથી વોટ ચોરી મુદ્દે
અને એ જ ફાઇલ્સ કરીને હરિયાણામાં 25 લાખ મતો ખોટા હતા એવો દાવો થાય છે. બ્રાઝિલિયન મોડલના એકથી વધુ મત હતા અને ઘણી બધી વસ્તુઓ હતી. તો પહેલા ફેઝ પહેલા 121 બેઠકો પર મતદાન પહેલા રાહુલ ગાંધીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ અથવા બિહારમાં જમીન સાથે જોડાયેલા મુદ્દા છે એ અથવા જે જંગલરાજની વાત એનડીએ અને સત્તા પક્ષ કરી રહ્યું છે અને ચાલુ ચૂંટણીએ જ્યારે આચારસંહિતા લાગી રહી છે અને મોકામામાં જે મર્ડર થયું અથવા જે કાયદો અને વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડ્યા તે બધી જ પરિસ્થિતિઓ શું બિહારની જે જનતા છે જનમાનસ પર છે એ અસર કરશે. ટ્રેન ભરાઈ બસો ભરાઈને અહીંથી પણ ગુજરાત સુરતથી પણ મતદાતાઓ ત્યાં જતા જોવા મળ્યા છે. મતદાતા શું આ વખતે બદલાવ ઈચ્છે છે અથવા તો શું નેક ટુ નેક ફાઇટ છે અને નેક ટુ નેક ફાઇટ વચ્ચે હવે આપણે બિહારથી સુધી જમીન પર શું ચાલી રહ્યું છે. તો બિહારમાં ચૂંટણી જંગ છે ને બિહારના ચૂંટણી જંગ પર પહેલા ફેઝમાં શું સ્થિતિ છે કેમ કે વાયદાઓથી માંડીને ઘણું બધું થયું. આપણી સાથે વરિષ્ઠ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક धनंजय कुमार जुड़ाई गया है. धनंजय जी स्वागत है आपका. और वहाँ तो जल्दी मतलब सूरज डूब जाता है, लेकिन जनादेश की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो हमने पिछले एक महीने में देखा, हमने इलेक्शन की रैलीज देखी, थोड़ी मर्यादाएं टूटती हुई देखी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही मोकामा में वो भी देखा, 10,000 से 30,000 का वायदा भी देखा, नौकरी वाली बात भी देखी. और पहला फेज क्या आंकलन है आपका, क्या दिखा आपको पहले फेज में, क्या 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 निकल के आ रहा है जमीन पर से, बिहार क्या कह रहा है? देखिए, पहला फेज जो है 6 बजे समाप्त होता है, लेकिन 6 बजे के बाद भी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनको वोट देने मिलेगा, उनको अंदर ले लिया गया होगा. और 7 बजे तक देंगे कि 8 बजे तक देंगे पता नहीं. जो 5 बजे तक की जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि 60% वोटिंग हुई है. 60%. पिछली बार अगर बात कीजिए 2020 की भी, तो 2020 में 58% वोट हुए थे, 58.7%. सबसे ज्यादा वोट जो है 2020 में हुए थे. 2005 में 46%, 2005 में हुए थे. दूसरा जो हुआ था 45%. 2010 में जब नीतीश कुमार को भारी बहुमत मिला था तब 52% वोटिंग हुई. 2015 में 57% और 2020 में 58%. इस बार 60% वोट जो है 5 बजे तक, 1 घंटा, 5 से 6 1 घंटा, और जितने लोग लाइन में लगे थे सब. यानी मुझे लग रहा है कि ये 70 के आसपास कहीं पहुंचेगा या 65 से 70 के बीच में कहीं पहुंचेगा. ये भारी वोटिंग बता रही है कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है. बीजेपी का एक तो देखिए कोई मुद्दा नहीं चला वहां. नरेंद्र मोदी जी घुसपैठिया, अमित शाह जी घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान, कट्टा पिस्तौल यही करते रहते हैं. बिहार में घुसपैठिया मुद्दा नहीं है. बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है. बिहार में मुद्दा है पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य. इसके अलावा कोई मुद्दा बिहार में नहीं. अब पटेल साहब की जयंती थी, सरदार पटेल की 150वीं जयंती, उसको उन्होंने कुर्मी से जोड़ने का प्रयास किया. क्योंकि बिहार में भी जो कुर्मी समाज के लोग हैं, नीतीश कुमार की जो कास्ट है, वो अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ते हैं. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ते हैं मतलब आपके वोटर हो जाएंगे, और नीतीश कुमार को आप अपमानित कीजिएगा और उसके बाद भी कुर्मी समाज आपको वोट देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है. वहां अभी देखिए नारा चल रहा है कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन जलाओ, जहां तीर नहीं वहां लालटेन जलाओ. और नीतीश कुमार का देखिए, नीतीश कुमार ने अगर उनकी राजनीति को थोड़ी बारीकी से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता है कि वो जेपी के आंदोलन में खड़े हुए समाजवादी नेता रहे. उसके बाद जो है बीजेपी से जब वाजपेयी जी के साथ जुड़े, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, समता पार्टी का निर्माण किस लिए हुआ मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता हूँ, लेकिन समता पार्टी का निर्माण हुआ था. जनता दल जो ये था, लालू प्रसाद जी की जो पार्टी थी, जनता दल तो सबकी पार्टी थी, वो तमाम समाजवादियों की पार्टी थी, बीपी सिंह की पार्टी थी. नीतीश और लालू में वहां झगड़ा शुरू, और उसकी वजह से इन्होंने अलग पार्टी बनाई, समता पार्टी, अपने सर्वाइवल के लिए. या जो लालू प्रसाद जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया, लालू प्रसाद के साथ जिनकी बनी नहीं, उन्होंने समता पार्टी का गठन किया. और समता पार्टी बाद में उनको उस तरह से प्रतिष्ठा नहीं मिली, उस तरह सम्मान नहीं मिला बिहार में, या कहीं वोट नहीं मिले बिहार में, तो बीजेपी से जुड़े. और वो इतिहास है वाजपेयी जी किस तरह से प्रधानमंत्री बने और सब लोग आए. लेकिन बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, जो बीजेपी का कोर एजेंडा है
चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे संघ हो, वो हिंदूवाद है, हिंदुत्व की राजनीति, मुसलमानों से नफरत, हिंदुओं में भी ब्राह्मणवाद। बिहार में ये सब कुछ चला नहीं। ये 2020 के बाद, खास करके जब पिछली बार जब आए आरजेडी को छोड़ करके फिर से बीजेपी के साथ, तब नीतीश कुमार कमजोर पड़ते दिखाई पड़े। और नीतीश कुमार को लगातार इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नीतीश कुमार की पूरी पार्टी बीजेपी के इशारे पे नाच रही है, जो बीजेपी चाहे करेगी वही होगा, ये सब गढ़ा गया। लेकिन नीतीश कुमार ने जब सीटों का बंटवारा हुआ तो जो सीटें उनको चाहिए थी वो जबरन ले ली, बिना किसी से बात किए हुए, और वहां ले ली मतलब कैंडिडेट दे दिए, उसको चुनाव चिन्ह दे दिया कि ये लो जाके नॉमिनेशन फाइल करो। वो चाहे ये चिराग पासवान की सीट हो, 5 सीटें चिराग पासवान की, 2 सीटें बीजेपी की थी, और न बीजेपी ने कुछ बोला न चिराग पासवान ने कुछ। लेकिन धनंजय जी, ये इसमें जो पिछली बार एक चिराग पासवान जो सभी सीटों पे लड़े थे, अलग अलग इंजन से केंद्र में सरकार में थे और यहाँ पे अलग से लड़े थे और वोट कटवा साबित हुए, वो जीरो हो गए, लेकिन काफी कुछ फायदा करा के गए एनडीए को। इस बार जो तेवर रहा, तो एलजेपी की जो सिचुएशन है वो मतलब कौन से रोल में रहेगी? और दूसरी चीज, जो नीतीश कुमार के वोटर है, मतलब अगर उसको कहीं और जाना है तो क्या जन सुराज पार्टी है वो एक अलग विकल्प हो चुकी है? तो फायदा नुकसान जो मतलब गिनती हो रही है, या फिर आरजेडी की या फिर बीजेपी की, तो दो चीजें में मतलब जो गणित पूरा बिठाया गया है वो पूरा वो एक मैसेज किया जा रहा है कि अगर जो नाराज है अगर सरकार से तो वो कहां जाएंगे। बात सही शायद यहीं पे टकी हो। और दूसरी बात युवा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए 2020 में जो हुआ, चिराग पासवान को 1 सीट मिली थी उस समय, और चिराग पासवान वो भी अपने दम पे कैंडिडेट जीत करके आया था। चिराग पासवान ने उस समय कुछ 134 सीटों पर लड़ा था, और जहां जहां आरजेडी के कैंडिडेट थे वहां खड़ा किया था। आरजेडी को, जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ, बीजेपी को लेकिन बड़ा फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को सिर्फ इतना फायदा हुआ कि नीतीश कुमार को छोटा कर दिया। लेकिन आप 2025 के चुनाव में देखिए कि नीतीश कुमार के पीछे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। वो भले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एनडीए का होगा या मुख्यमंत्री विधायक तय करेगा, लेकिन साथ साथ ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ आ सकते हैं। क्या नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी का कोई चेहरा है? क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बदले लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार के क्यों ढो रहे हैं? तो नीतीश कुमार को कमजोर करके 2020 में बीजेपी ने अपना नुकसान किया है। वो 2025 का जो चुनाव का परिणाम आएगा 14 तारीख को, आपको वो दिखाई पड़ेगा। बिहार में तो ये चर्चा है कि बीजेपी इस बार तीसरे नंबर की पार्टी हो, सही है ना। अब उसके बाद देखिए कि जो स्थिति है, जो आपने कहा कि सरकार से जो नाराज वोट है वो कहां जाएगा। जनता दल यू से नाराज वोट की संख्या बहुत कम है, और जनता दल यू से जो नाराज है, नीतीश कुमार से जो नाराज है, वो जनसुराज में नहीं जाने, वो जाएंगे तेजस्वी के पास। क्यों? देखिए बिहार में पिछले 35 सालों से, 35 ईयर से पिछड़ों का शासन है। यादव और कुर्मी जो है दोनों पिछड़े हैं। जो आरक्षण की राजनीति है, आप जानते हैं कि 1990 में आरक्षण जब लागू हुआ, बीपी सिंह ने लागू किया था, तो वहां ये सब उनके साथ खड़े थे, बीपी सिंह के साथ, इन लोगों के दबाव में, बल्कि कहा जाए कि उसमें रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, नीतीश थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, लालू प्रसाद यादव थे, जिनके दबाव में आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण लागू होने के बाद क्या हुआ था? अडवाणी साहब रथ लेके निकल गए, बीपी सिंह की सरकार गिर गई। तो मंडल और कमंडल जो शब्द बने उसी समय बने। तो ये कमंडल वाले हैं, मंडल वाले नहीं। नीतीश कुमार मंडल वाले हैं, कमंडल वाले नीतीश कुमार नहीं। उनके वोटर भी मंडल वाले हैं, कमंडल वाले नहीं है नीतीश कुमार के वोटर। तो पर्सनली नीतीश कुमार मजबूत होंगे, आपका ये मानना है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये कहा जा रहा है महिलाओं का वोट, एनडीए को वोट, अरे एनडीए को वोट नहीं मिल रहा, वो वोट मिल रहा है नीतीश कुमार को वोट मिल रहा है। सवर्ण महिलाएं हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी, जो सवर्ण महिलाएं, बैकवर्ड क्लास की महिलाएं, या जो कहा जा रहा है नेशनल मीडिया में, महिलाओं को 10,000 रुपया दिया। महिलाओं को 10,000 रुपया नहीं मिला है भाई साहब, जिससे मध्य प्रदेश में, जैसे महाराष्ट्र में मिला, वैसे नहीं मिला है। जो जीविका दीदी है, जो जीविका दीदी के तौर पे काम करती हैं, उनको मिला है 10,000 रुपया। जो 1,44,00,000 जीविका दीदियां हैं बिहार में, महिला वोटर 3.5 करोड़ के आसपास,
3.5 करोड़ को नहीं मिला है 10,000 रुपया। ये क्लियर कर लीजिए। सब लोग कह रहे हैं महिलाओं को 10,000 मिले, नहीं मिले हैं। और 10,000 ही नहीं मिले हैं जीविका दीदियों। 1,21,00,000 जीविका दीदियों को 10,000 मिले, लेकिन खाली 10,000 नहीं मिले। उनकी सैलरी पिछले महीने बढ़ाई गई थी, जो 3,000 थी उसको 10,000 किया गया। उनकी सैलरी 1 महीना नहीं मिली थी, 2 महीने करके 20,000 रुपया और दी गई, तो कुल 30,000 रुपया महिलाओं को मिले। 1,21,00,000 महिलाओं को 30,000 रुपए दिए। वो मोदी जी ने नहीं दिए, वो बिहार सरकार ने दिया है। मोदी जी ने ये जीविका दीदियों को जो पैसा देने की बात की जा रही है, हल्ला किया जा रहा है, तो ये महिलाओं को पता है। वो नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं। और नीतीश महिलाएं जो आ रही है, खाली ये 10,000 का मामला नहीं है, जीविका दीदियों का मामला नहीं है। आपको एक और बता दूं, नेशनल मीडिया पे जो देखते हैं उनको शायद बहुत चीजें, जो 10वीं पास करती है लड़की फर्स्ट डिवीजन से, उसको 15,000 रुपए मिलते हैं। आज से नहीं, जमाने से। जो 12वीं पास करती है उसको 25,000 रुपए मिलते हैं, जमाने से। लड़कियों को जो 12वीं पास करती है उसको 25,000, जो 10वीं पास करती है 15,000, जो ग्रेजुएशन बीए की डिग्री लेती है या बीकॉम की डिग्री लेती है, बैचलर डिग्री लेती है, उसको 75,000, और जो एमए की डिग्री लेती है उसको 1,00,000 रुपया। जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज जो है, जो पास करती है प्रीलिम्स, उसको 50,000 रुपया। तो ये पहले से मिल रहा है, वादा नहीं है, ये मिल रहा है, मिल गया है। ऐसा नहीं कि हम जीत के आएंगे तब देंगे। तो वो नीतीश कुमार के प्रति, और ये चूंकि आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, तो वो ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसमें बड़ी वजह नीतीश कुमार फैक्टर है। वो पैसे वाला फैक्टर है, जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है। साथ ही एक बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी को सत्ता बिहार की जनता नहीं देना चाहती। वहां सवर्ण जो है और जो बैकवर्ड क्लास, दलित क्लास के लोग हैं, वो सब अवेयर है। आप देखिएगा वीडियोज बिहार के, शाम तक और नेशनल मीडिया पे आएगा। ज्यादातर जगहों पे टकराव हुआ है, हिंसा भी हुई है। भले मर्डर नहीं हुए हैं, मोकामा जो घटना थी जो अलग थी, लेकिन कई जगह हुई है। चुनाव आयोग ने बेईमानी की है, बदमाशी की है। कई जगह जो है वोट नहीं देने दिए गए लोगों को। कई जगह लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो SIR को लेकर के राहुल गांधी बोल रहे थे, वो सच होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ढेर सारी चीजें हैं, और इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है अभी विजय कुमार सिन्हा, उनके इलाके में भयंकर झड़प हो गई, पब्लिक ने दौड़ा करके भगाया उनको। पथराव की बात चल रही है आरजेडी के ऊपर एलिगेशन से, कि मतलब पथराव किया, तो मतलब अब कहने को तो किसी को पथराव कर दिया, कह दिया। तो अब सब कुछ तो आपके पास है, पत्थर भी आपके पास है, पथराव करने वाले लोग भी आपके पास है। फूल बरसाने के लिए जो आप देखते हैं वहां रैली होती है या रोड शो होता है, 500 रुपए महिलाओं को देते हैं, घरों वालों को। ये आपके पास कितनी महिला है? तो 3 महिला है, तो ये लीजिए 1500 रुपए, तीनों फूल बरसाइएगा। ये इनका ड्रामा है। बिहार के लोग ये सब ड्रामा जानते हैं। तो बिहार में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई अपना मुख्यमंत्री, पर्ची वाला मुख्यमंत्री बना पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। कोई खेल हो जाए तो मैं नहीं कर सकता। ग्राउंड पे ऐसा कहीं नहीं, इसलिए हम आप मतलब ग्राउंड से मतलब हो, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, इसलिए हमने आपसे बात की। और ये पहला फेज गया है, आंकड़े खुल के निकल कर बाहर आएंगे जो पहले फेज के हैं, जो वोटिंग के, तो उसके बाद में भी बात करते रहेंगे और आगे के फेज में भी बात करते रहेंगे कि पाटलिपुत्र की जंग आखिरकार कहाँ जा रही है। और जो बात हो रही है बेसिकली बिहार से बाहर या फिर नेशनल मीडिया में या अन्य राज्यों में जो मैसेज जा रहा है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स की भी नज़र है, पैनी नज़र है कि बिहार में क्या हो रहा है। धन्यवाद धनंजय जी जुड़ने के लिए GSTV के साथ। तो आसाते चर्चा में हाल बस आटलू ज। नमस्कार।